ஓம் சாந்தி. எல்லாரும் ஃப்ரெஷ் மைண்டோடு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டீ பிரேக் அப்புறமா. ஸோ இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு செஷன் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ நாம் எல்லாரும் ஞானத்துக்கு வந்து நம்மளுடைய யஜ்யத்தை நடத்தின, நம்மளுடைய யஜ்யத்தை ஸ்தாபனை பண்ண பிரம்மா பாபா, அவர் கூட இருந்த தாதிகள், தீதிகள், சகோதரர்கள், இவர்களெல்லாம் நம்ம மதுபனில் நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்த்துருப்போம். ஸோ அவங்கள பார்க்கும்போது சில இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் அவங்க கிளாஸில் இருந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கும். இல்லை அவர்களை பார்க்காதவர்கள் கூட இப்போ நாம் இருப்போம். நம்ம தாதிகள் சில பேரை பார்த்துருக்க மாட்டோம், நம்ம அம்மாவை பார்த்ததில்லை. ஸோ இது போல் இருக்கும்பொழுது இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. அவர்கள் கூடவே இருந்து அவங்கக்கிட்ட இருந்து அவங்களுடைய ஞானத்தை சொல்கிறது மூலமாக மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கூடவே இருந்து அவங்களுடைய நடவடிக்கை, அவங்களுடைய செயல்கள், அவங்க எப்படி எல்லாரையும் வந்து அரவணைத்து கொண்டு போனாங்க, அவங்க எல்லாத்தையும் எப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாங்க, இதெல்லாம் கூடவே இருந்து பார்த்து அதிலிருந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வது அப்படிங்கிறது அவங்களோட கிளாஸஸை விட இன்னும் அதிகமானதாக இருக்கும். ஸோ அந்த அனுபவங்கள் எப்பொழுதுமே வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இன்றைக்கி நம்ம கேட்க போகிறது. ஸோ இப்போ நாம் கேள்வி பதில் செஷன், கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் மூலமாக நம்முடைய ஷர்லா தீதி அவர்கள் அவங்க சிறு வயதிலே ஞானத்தில் வந்தாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் அவங்களோட இன்ட்ரொடக்ஷன் சொன்னாங்க. ஸோ அம்மா கூடவே அவங்க இருந்திருக்கிறாங்க. ஸோ மதுபனில் நம்மளுடைய தாதிஜி யாரெல்லாம் இருந்தார்களோ, பிரகாஷ்மணி தாதி, குல்சா தாதி, ஜான்கி தாதி, ஸோ இந்த தாதிகள் கூடவே அவங்க மதுபனில் அடிக்கடி அங்கே சென்று வந்தாங்க, அவங்க கூட இருந்தாங்க, அவங்க கிட்டேருந்து நிறைய விஷயங்களை அவங்க எடுத்துக்கொண்டாங்க. ஸோ அந்த அனுபவங்களை தான் இன்றைக்கி வந்து நமக்கு நம்மளுடைய தீதிஜி அவர்களும் சரி, நம்மளுடைய பீனாபேன்ஜி அவர்களும், நம்ம பிரகாஷ்மணி தாதி, நம்மளுடைய தாதிகள் குல்சா தாதி, ஜான்கி தாதி, ரமேஷ் பாய்ஜி, இவர்கள் கூட எல்லாம் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவர்களுடைய ஒரு கைடன்ஸில் யஜ்யத்தில் சமர்ப்பணமாகி நம்ம தமிழ்நாடுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக கிடச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய அனுபவங்களையும், நம்ம தாதிகள் தீதிகள் கூட இருந்த அனுபவங்களையும் இப்போ நம்ம கூட 2 பேரும் ஷேர் பண்ண இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இது மூலமாக நமக்கு நிறைய விஷயங்கள், அனுபவங்கள் நமக்கும் வந்து கிடைக்கும். அதை நம்ம வாழ்க்கையினுடைய படிப்பினையாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். सो अभी हमारे बीच ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वरीय ज्ञान का सैंपल बनाया है. எல்லாருக்கும் ट्रांसलेशन கிடைக்கும், நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. तो संगम युग पर बाबा का, मम्मा का, दादियों का, वरिष्ठ भाइयों का पालना मिलना, उनके अंग संग रहना, ये भी एक एक्स्ट्रा भाग्य है. जो ये भाग्य हमारी जो प्यारी दीदी जी हैं, बीना बहन जी हैं, उनको प्राप्त हुआ है. तो हम अभी उनकी अनमोल अनुभव जो दादियों से, दीदियों से लिया है, वो अभी हमसे वो शेयर करेंगे. तो इस क्वेश्चन आंसर सेशन में दीदी जी को और बीना बहन जी को मैं स्वागत करती हूँ. वेलकम दीदी जी, वेलकम बीना सिस्टर. ये जून मास जो है वो मम्मा का जो स्मृति सबके दिल पर है. तो पहला जो क्वेश्चन है वो मम्मा के बारे में हम शुरू करते हैं. ये दीदी जी से हम पूछते हैं, सुनना चाहते हैं. दीदी जी, मम्मा ने बाबा की बातों को साधारण रूप से नहीं लिया, तो ये हर एक बात को फरमान के रूप से पालन किया, ऐसे हमने सुना है. तो हमेशा मम्मा ऐसे कहती थी कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है. तो ऐसे हम भी बाबा की हर बात को समझकर उसका स्वरूप बनने के लिए कौन सी धारणाओं को पक्की करनी है, मम्मा से कौन सी प्रेरणाएं हम ले सकते हैं?
उसके बारे में आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आप सब रेडी हैं इस सेशन के लिए? आपको ये सेशन पसंद है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि शिव बाबा ने आकर के सतयुगी सृष्टि की स्थापना के लिए यज्ञ रचा, और यज्ञ के जो आधार स्तंभ थे वो बड़े मजबूत थे, जिसके कारण से आज दिन तक ये यज्ञ अपनी सफलताओं से संपन्न, दिन दूनी रात चौगनी सिद्धियों को प्राप्त कर रहा है। कारण क्या था? हमारे आधार स्तंभ बहुत मजबूत थे। तो जब हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो बाबा की जीवन कहानी में उसको वो निश्चय के साथ नशा चढ़ा। बाबा की तो जीवन कहानी हमने सुनी है ना, उसके साथ हम मम्मा को लेते हैं। तो बाबा को सबसे पहले ये नशा चढ़ गया कि अरे भगवान मेरे द्वारा और नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहा है। चिंतन करते करते बाबा को रात को नींद नहीं आती थी। ऐसे पहाड़ी पर बाबा लेटा है, चिंतन कर रहा है, और इतना अंदर से बाबा को खुशी और नशा होता था। और एक सेकंड में बाबा ने ये निर्णय ले लिया कि अब ये सारा जीवन परमात्मा सेवा के लिए है। एक लेटर अपने भागीदार को लिख दिया। अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलफ की, हुआ रेल का राही। माना अलफ माना बाबा परमात्मा, तो जब उसकी तार आई, तार माना टेलीग्राम, अलफ को अल्लाह मिला, बे माना जो बाबा का भागीदार था, पार्टनर था, तो बाबा ने अपना हिस्सा उसमें से ले लिया। तो बे को मिली झूठी बादशाही, उसको बिजनेस मिल गया। आई तार अलफ की, हुआ रेल का राही, वो छोड़ करके बाबा इस ईश्वरीय मंजिल पर आगे बढ़ा। अब कोई भी कार्य अकेला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता है। संगठन के द्वारा ही सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। तो शिव बाबा को तो इतना बड़ा सारे तमोगुणी विश्व को बदल करके सतोगुणी बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना कितना बड़ा कार्य था। उस बड़े कार्य को बहुत सहज रीति से, विधिवत, सिस्टमेटिक बाबा ने सेट किया। सारे बाबा के सत्संग में कथा, ये ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। कई सारे विघ्न, उसकी हिस्ट्री में मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे मम्मा के क्वेश्चन का जवाब देना है, ये बाबा की हिस्ट्री है। तो जब यज्ञ में आने लगे और विघ्न पड़ने लगे, तब फिर बाबा ने ओम मंडली नाम से इस विद्यालय की स्थापना की। तब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं कहते थे, ओम मंडली। ओम मंडली के अंदर मम्मा आती थी। मम्मा की हिस्ट्री ये कहती है कि मम्मा का लौकिक परिवार बहुत धनाढ्य परिवार था। डायमंड का और घी का उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन अचानक बिजनेस में लॉस आया। तो मम्मा अपने लौकिक मामा के यहाँ अमृतसर में रहती थी। बहुत कुशाग्र बुद्धि थी। फिजिकली भी मम्मा ब्यूटीफुल थी,
मम्मा के अंदर गाने का बड़ा अच्छा आर्ट था। कहते हैं स्कूल के अंदर मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जब ये गीत गाया तो सारी सभा ने इतनी तालियां बजाई और वंस मोर कहा। माना मम्मा की आवाज में इतनी स्वीटनेस थी। और भी सारी मम्मा की विशेषताएं थी। तो जब ये हुआ उसके बाद में ये परिवार बहुत दुखी था। तो मम्मा की लौकिक मदर, उनको परिचय मिला, यहाँ पर ओम मंडली में आए। फिर उन्होंने कहा, उसकी मदर ने, कि देखो ये सब सुनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। तो मम्मा ने भी देखा कि पहले ये माँ इतनी उदास रहती थी और अभी इसके अंदर इतना चेंज आया। तो कहा, बेटी तुम भी चलो, हम तो भूल जाते हैं, पर तुम अगर आकर के हमें वो बातें सुनाएंगी तो और अच्छा लगेगा। मम्मा यज्ञ में आई, ज्ञान सुना। हिस्ट्री लंबी है, लेकिन धीरे धीरे बाबा के यज्ञ में बाबा ने उसको नाम दिया ओम राधे। मम्मा सुबह उठ करके बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखती थी। सितार पर मम्मा गीत गाती थी। फिर बाबा और मम्मा ये दोनों अलग अलग भवन में रहते थे। बाबा सुबह सुबह उठ करके मुरली लिख करके भेजते थे। मम्मा बैठ करके सारी मुरली पढ़ती थी और उसके बाद में फिर मम्मा ओरली मुरली सुनाती थी। हम आजकल मुरली सुनते हैं ना, मधुबन से आती है, मैंने पढ़ी, इन्होंने या इन्होंने, तो हम पढ़ कर के मुरली सुनाते हैं। लेकिन मम्मा की बुद्धि इतनी शार्प थी, मम्मा मुरली पढ़ने के बाद चिंतन करके हूबहू जो और जैसे बाबा ने कहा वैसे मम्मा मुरली सुनाती थी। उसका कारण था मम्मा के अंदर एकाग्रता थी। किसके महावाक्य हैं? भगवान के महावाक्य हैं। तो बहुत एकाग्र होकर के पढ़ती थी और फिर सुनाती थी। अब जब ये सब कुछ शुरू हुआ, ओम मंडली को व्यवस्थित बाबा ने एक रूप दिया, यज्ञ कहो, संस्था कहो। तब मम्मा को बाबा ने कहा, हमारी और भी दादियाँ, दादी प्रकाश मणि और मम्मा, ये दोनों क्लास फेलो थे, एक ही बेंच के स्टूडेंट थे। अच्छा, दादी का भी वहाँ आना शुरू हुआ। दादी ने भी मम्मा को देखा, मम्मा ने दादी को देखा। तो बाबा ने मम्मा को पूछा कि मम्मा तुम किसको पसंद करती हो, कोट पैंट वाले को या पीतांबरी को? कोट पैंट माना व्यक्ति, पीतांबरी माना श्री कृष्ण। अच्छा, दादी को बाबा ने ये प्रश्न पूछा था, दादी ने भी ये कहा कि पीतांबरी को। फिर मम्मा को बाबा ने कहा कि बाबा तुमको यज्ञ माता बनाना चाहता है, इस यज्ञ की जवाबदारी बाबा तुमको सौंपना चाहता है। मम्मा तुम 24 घंटे में बाबा को जवाब दो। मम्मा कहते हैं सारी रात उस दिन जागी और इतना मम्मा को अंदर से बाबा के लिए प्यार था कि भगवान मुझे जिस जिम्मेवारी के लिए हाँ कह रहा है, निमित्त बना रहा है, तो मैं उसको ना कैसे कह सकती हूँ। सारी रात कहते हैं मम्मा के आंख से इतने स्नेह के आंसू निकले कि मम्मा का पिलो भीग गया था। फिर मम्मा ने बाबा को कहा कि बाबा मैं रेडी हूँ। और जिस दिन से बाबा ने उसको यज्ञ माता कहा और मम्मा ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया, मैं यज्ञ माता हूँ, संभालने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद धीरे 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 मम्मा में फिजिकल चेंज भी आया। मन तो था ही शक्तिशाली। जो कन्या थी, 16 या 17 वर्ष की कुमारी थी, उसमें मातृत्व आया, माँ दिखाई देने लगी।
और हर आत्मा के प्रति मम्मा को वो दिल से प्यार था कि ये सब बच्चे हैं बाबा के। अगर कोई भूल करता था तो कभी भी मम्मा कमेंट नहीं करती थी, कभी भी मम्मा किसी की गलती किसको नहीं सुनाती थी। बड़े प्यार से बिठा करके पहले मम्मा उसकी विशेषता सुनाती थी। देखो बच्चे, तुम ये बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारे में ये कितना बड़ा गुण है, लेकिन तुमने ये जो किया ना, ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। समझा आप लोगों ने? पहली विशेषता क्या थी? यज्ञ का संचालन करने में मम्मा ने किसी की कमजोरी को किसी दूसरे को नहीं सुनाया। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? बहुत इंटरेस्ट से। आपको मालूम है कविता बहन कैसे है? नाम इसलिए लिया, आप पहचानते हो। कविता बहन की कोई कारण बात नहीं है, और उस समय तो कविता बहन थी भी नहीं। ये विशेषता मम्मा की जो हम सबको धारण करनी है अपनी स्थिति को ऊंच बनाने के लिए। कभी भी किसी की कमजोरी का, अवगुण का वर्णन किसी दूसरे के सामने नहीं करना है। आप नोट करेंगे, पहली धारणा। दूसरा, बाबा जो कह रहा है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। उसमें मम्मा को अटूट निश्चय था। एक संकल्प भी मम्मा अपना नहीं चलाती थी। बाबा ने कहा और हाँ जी, और मम्मा ये सबको सिखाती थी। हम मनोहर दादी कहती है, अनुभव सुनाती थी कि मम्मा ये हमें सिखाती थी कि तुमको मालूम है बाबा ने कहा है, ये बचपन क्यों करते हो बाबा, ऐसे नहीं होगा, ऐसा आपने कैसे कह दिया। ये शब्द हम बाबा को नहीं बोल सकते हैं। तो अटूट निश्चय, बाबा ने कहा है और मम्मा ने करना है। ऐसे भी मम्मा को किसी ने पूछा कि मम्मा आपका तीव्र पुरुषार्थ कैसे बढ़ा, आप इतना तीव्र पुरुषार्थी कैसे बनी? बड़ा सहज मम्मा ने जवाब दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो बाबा ने कहा वो मैंने किया। अच्छा, तो इस अटूट निश्चय की धारणा के कारण से बाबा के बहुत समीप थी। तो बाबा की शक्तियों का मम्मा अनुभव करती थी। और तीसरी विशेषता मम्मा की पवित्रता बहुत गहरी थी, एकदम प्योर। आप इमेजिन करिए 17-18 वर्ष की कन्या, और उसने मातृत्व को स्वीकार किया, जगत माता सरस्वती बनी। और जिस समय बाबा और मम्मा बैठते थे, जो पार्टीज आती थी, जैसे आप सब हैं ऐसे बाबा के उस समय के बच्चे आते थे, तब मम्मा बहुत प्यार से गोद लेकर के ऐसे हाथ फेरती थी। ब्रिजमोहन भाई ने अपना अनुभव सुनाया, हम लोग उनके साथ रहे हुए हैं। बोला पहली बार मैं जब मम्मा की गोद में गया, मम्मा का पोज देखा है ना, मम्मा ऐसे बैठती है, ये मातृत्व। फिर ऐसे मम्मा की गोद में, बोला मम्मा ऐसे हाथ फेर रही थी, ऐसे लगता था जैसे कोई रुई का पुतला हो। माना कोई भी अंग का, माना बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं थी, संपूर्ण फरिश्ता रूप, लाइटनेस, मातृत्व उनसे झलकता था। समझा आपने पवित्रता की पराकाष्ठा को? मैं कुमारी हूं, मैं मम्मा हूं, नाम निशान भी नहीं था, जगत माता, और ये सब बच्चे हैं। उस पवित्रता के बल से मम्मा में साइलेंस पावर आई। साइलेंस पावर माना एक के साथ इतना गहरा कनेक्शन जुट गया। ये क्या करता है, यहां क्या चलता है, ना मम्मा एक्स्ट्रा देखती थी, ना मम्मा एक्स्ट्रा सोचती थी, ना वर्णन ना चिंतन था।
ये थी संपूर्ण पवित्रता, केवल ब्रह्मचर्य नहीं था, लेकिन कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं थी। मम्मा ने एक सेकंड को वेस्ट नहीं किया। इन धारणाओं के कारण से मम्मा में वो पावर था, और उस पावर से आने वाली जो भी परिस्थितियां थी उनका बड़ा सहज रीति से मम्मा सामना कर लेती थी। आप सबने सुना होगा, मम्मा की ये दिनचर्या थी, एक्यूरेसी बहुत थी। रात को 2 बजे उठ करके डेली मम्मा तपस्या करती थी, और मम्मा की तपस्या का स्वरूप क्या था? एकदम कुर्सी पर बैठती थी, डिटैच, जो हूं उसके संपूर्ण स्वरूप में, जिसको बाबा कहता है निज स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के बैठती थी। तो जैसा देश वैसा वेश। यहां नहीं, तन यहां बैठा है, लेकिन आत्मा कहां है? बाबा के पास में है। तो इतना बाबा में और मम्मा में समीपता थी। तो सारी शक्तियां जैसे मम्मा अपने में स्टॉक करती थी, आज हम आप भी बाबा को याद करते हैं। हमारी याद और मम्मा की याद में कोई अंतर है? अंतर है? जो समझते हैं अंतर है, हाथ खड़ा करिए। मम्मा जैसे याद करती थी और हम भी याद करते हैं, हाथ ऊंचा ऊंचा करिए। अंतर है? अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस अंतर को मिटाना पड़ेगा। मिटाएंगे? मिटाएंगे? क्योंकि जब ये अंतर मिटेगा तब शक्ति का स्टॉक जमा होगा। आज आप सब भाई बहनें मेहनत कम नहीं करते हो, पुरुषार्थ कोई कम नहीं करते हो, लेकिन हमारी शक्ति जमा नहीं रहती है, लीकेज हो जाती है। तो मम्मा के पास स्टॉक था, इसलिए मम्मा की ये जो धारणा थी, इन्होंने कहा हर घड़ी अंतिम घड़ी, ये समझ करके मम्मा पुरुषार्थ करती थी, जिसके कारण कहती थी अगर यही घड़ी शरीर छूट जाए तो मैं कहाँ जाएंगी, आत्मा की गति क्या होगी। तो बाबा के साथ उस अटूट प्यार ने उस धारणा को परिपक्व बनाया और हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। ये मम्मा की इतनी पक्की धारणा थी, उसके हुक्म से ये चल रहा है। मैं सोच रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैंपन खत्म था। एक छोटा सा मिसाल दे करके मैं इसको पूर्ण करती हूँ। एक बार बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा ये पार्टी जा रही है, इसके लिए हलवा बनाओ, सीरा। मम्मा गई किचन में बनाने लगी, तो बना रही थी, पार्टी चली गई। हमारी मोहिनी दीदी थी यज्ञ में। मोहिनी दीदी थोड़ी चंचल थी, बाबा के साथ बड़ा रमजी बातचीत करती थी। दौड़ती हुई आई, कहा मम्मा मम्मा पार्टी तो चली गई, ये बंद कर दो, अभी हलवा बनाना। मम्मा बहुत शांति से हलवा बनाती गई, बनाया, डब्बे में भरा और बाबा को दे आई। बाबा ने उसी टाइम पर, तब तो ये सारे साधन नहीं थे, एक्टिवा गाड़ियाँ, भाई को बुलाया, साइकिल पर लेकर के वो गया बस स्टैंड पर, और उसी टाइम बस स्टैंड से बाहर निकली। उसने दूर से आवाज़ लगाई, ड्राइवर को बोला, गाड़ी खड़ी रखी, और उसने विंडो में से वो जो हलवा बाबा ने भेजा था वो डब्बा उसको दे दिया। उस पार्टी को जाकर के उसने बाबा को जो पत्र लिखा, जितने बच्चे थे उन सब का बाबा में अटूट प्यार और निश्चय बढ़ा कि बाबा को इतना प्यार, हम निकल गए उसके बाद भी बाबा ने हमारे लिए हलवा भेजा। तो ये थी मम्मा की विशेषता। सुनाएं तो ढेर विशेषताएं हैं, कभी भी बाबा को ओवरटेक नहीं किया। और एक छोटा सा मिसाल, एक बार बाबा ने कहा कि मम्मा ये चिड़िया होती है ना, तो चिड़िया का अंडा था,
चिड़ियाएं हैं ना, उनका अंडा था। बाबा ने कहा मम्मा मुंह खोलो, अंडा मुंह में डालो। अगर आपको अभी मैं कहूं आप मुंह खोलो, ये अंडा आपके मुंह में डाल दूं, तो आपको क्या संकल्प चलेगा, इनको है या नहीं है? अंडा कोई मुंह में डाला जाता है? बाबा ने कहा और मम्मा ने ऐसे मुंह खोल दिया। फिर बाबा ऐसे अंडा मुंह के पास लेकर के गया। अच्छा, मम्मा ऐसे स्थित प्रज्ञ खड़ी हुई थी, बाबा जवाबदार है ना। फिर यहां तक मुंह तक नजदीक तक ले जा करके बाबा वापस ले गया और बाबा ने कहा मम्मा आप 100% पास हुई। मम्मा कहती है अरे ये तो करण करावन हार है, उसको मालूम है मुझे खिलाना है या नहीं खिलाना है, मैं क्यों अपना संकल्प चलाऊं? इनके कारण से मम्मा बनी और हमारा यज्ञ और यज्ञ वत्स हमारी सभी दादियां उसी फाउंडेशन पर आगे अपने आप को मजबूत बना करके यज्ञ को चलाती रही। நல்லா கைத்தட்டிடலாம் दीदी। सो थैंक यू दीदी जी, इतनी रमणीकता से हमको समझाया और बहुत अच्छी धारणाओं को आपकी बात से हमने सीख लिया। ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம வேற எங்கேயும் கேட்க முடியாது। ஸோ தீதி நமக்கு 3 தாரணைகள் பக்கா பண்ணியிருக்காங்க। ஸோ எல்லாரும் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுருக்கோம், நோட் பண்ணிக்கலாம்। இந்த 3 தாரணைகள் என்ன சொன்னாங்களோ, யாருடைய அவகுணங்களையும் நாம் வர்ணனை பண்ணக்கூடாது। ரெண்டாவது அட்டூட் நிக்ஷை நமக்கு பாபா மேலே இருக்கணும்। அப்புறம் பவித்ரதா, மம்மாவோட பவித்ரதா। ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும், எப்போ வேணாலும் நாம் இதெல்லாம் நம்ம படித்து பார்க்கலாம்। தேங்க்யூ दीदी जी। अभी नेक्स्ट प्रश्न है ये मनमोहिनी दीदी के बारे में। तो எல்லாருக்கும் मनमोहिनी दीदी, யாரெல்லாம் मनमोहिनी दीदी இங்கே பார்க்கல, जो देखा नहीं मनमोहिनी दीदी को, सभी नहीं देखा है उन्होंने। अच्छा, जिसने देखा है वो हाथ यार खड़ा करें। பார்த்துருக்கீங்க? थोड़े हैं। அவங்கள பற்றி क्वेश्चन है। सो मम्मा के बाद मनमोहिनी दीदी ने यज्ञ की कई कारोबार को संभाला। उसकी विशेषता है हमेशा एक व्रता होकर रही और बाबा से जिगरी प्यार था। सर्व संबंध भी एक बाबा के साथ निभाई, था भी उनके अंग संग रहे। तो उनकी जीवन से कौन सी प्रेरणाएं आपको अनुभव हुआ, वह शेयर कीजिए दीदी। मुझे आत्मा को ड्रामा में दादी दीदियों के बहुत समीप रहने का एक भाग्य प्राप्त हुआ और मैंने भी उस पालना को जीवन में अपनाया और आज भी वो संकल्प रहता है जो हमारी दादी दीदियों ने किया है वही हमें करना है। हमारी श्रद्धेय दीदी, बाबा भी उनको हमेशा दीदी कहा करता था। दीदी लौकिक में बहुत धनाढ़े परिवार की थी, बहुत संपन्न परिवार था। इनकी लौकिक मदर, जिनको बाबा क्वीन मदर कहते थे, वो भी इतनी ब्यूटीफुल और कहते हैं डायमंड की ज्वेलरी से सजी हुई बहुत रिच परिवार की थी। और विदेश में इनका बिजनेस चलता था। जब दीदी के लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा तब क्वीन मदर को बहुत इफेक्ट हुआ और उनको यज्ञ में लेकर के आए। उन्होंने ज्ञान सुनना शुरू किया और उनके जीवन में परिवर्तन आया। मैं 1971 में क्वीन मदर के साथ मधुबन में रहती थी और क्वीन मदर बहुत अच्छी अच्छी अपने बाबा के साथ की और दीदी की बातें सुनाया करती थी। तो कहते हैं दीदी के अंदर
लौकिक में बहुत बड़े परिवार की संपन्नता का नशा था, ईगो और क्रोध बहुत था। दीदी खुद अपना अनुभव सुनाती थी। घर में नौकर चाकर आया, बोली मैंने पानी मांगा और अगर आया ने 5 मिनट लगाया पानी का ग्लास देने में, तो पानी का ग्लास सीधा उसके ऊपर फेंकती थी। इतना नशा और इतना गुस्सा। आया है और 5 मिनट के बाद में देती है। ये दीदी थी। लेकिन जब ज्ञान मिला और दीदी का लौकिक पति जो था वो बाहर रहता था, विदेश में बिजनेस करता था, इधर दीदी को ज्ञान मिला तो ज्ञान में दीदी बहुत पक्की हो गई। इनका भाई वो भी बाहर विदेश में बिजनेस करता था। तो जब ये लोग ज्ञान में चलने लगे तो बहुत पेपर आए और ना बोला, लेकिन बाबा ने एक युक्ति रची, आप सबको मालूम होगा। अपने लौकिक पति से या पिता से कन्याएं चिट्ठी लेकर के आई कि हम इसको ज्ञान अमृत पीने पिलाने की छुट्टी देते हैं, तो वो चिट्ठी दीदी की भी थी। फिर बाबा ने दीदी को युक्ति बताई, एक सिलाई क्लास शुरू किया। दीदी क्लास टीचर थी सिलाई कराने की, और उसमें ये जो भी हमारी दादियाँ थीं सिलाई सीखने आती थी, फिर वहाँ इनका सत्संग चलता था और ये सब लोग ज्ञान में मजबूत हुए। फिर धीरे 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 ये सब समर्पित हुए। क्वीन मदर दीदी मनमोहिनी और दीदी से छोटी एक और बहन थी, उनका नाम था शीलिंद्रा दादी। शीलिंद्रा दादी के साथ में तो मैं समझती हूँ बीना बहन के अच्छे अनुभव होंगे, क्योंकि वो बॉम्बे गामदेवी में रहते थे और बाबा उनको कहता था बॉम्बे का गवर्नर। यज्ञ की खरीदारी, यज्ञ को कैसे चलाना है, चीज़ें भेजनी है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट शील दादी का था। और क्वीन मदर, उसके 3 शब्द थे जो हमको भी वो कहा करती थी और सारा यज्ञ जानता है। वो हमेशा कहती थी झुक झुक झुक, हमेशा जीवन में झुकना सीखो। मर मर मर, देह अभिमान से मरो। और तीसरा कहती थी सीख सीख सीख। हम कहते हैं ये मुझे करना नहीं आता है, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मुझे भाषण करना नहीं आता है, तो वो क्वीन मदर हमेशा कहा करती थी सब कुछ सीख सीख सीख। ये क्वीन मदर की धारणा थी। अब यज्ञ में आने के बाद बाबा ने दीदी को कंट्रोलर बनाया। मम्मा के साथ में सारे यज्ञ की दीदी कंट्रोलर थी। आप सुनना, देखो बाबा का हमेशा ये ध्यान रहा, ये नहीं देखा ये अभी छोटे हैं, बड़े होंगे तब परिवर्तन होगा। शुरू से संस्कार परिवर्तन पर बाबा का अटेंशन था, क्योंकि जब तक संस्कार नहीं बदलेंगे तो स्वर्णिम संसार कैसे बनेगा? बन सकता है? हम शूद्र संस्कारों से जिए और स्वर्ग की दुनिया की बातें करें तो स्वर्ग आएगा? नहीं आएगा। तो बाबा ने जब इनको कंट्रोलर बना दिया तो चेक करता था कि इनको कंट्रोलर का नशा तो नहीं है। समझो मैं सब जोन इंचार्ज हूं तो मुझे अंदर से नशा रहे, मैं सब जोन संभालती हूं, तो वो बाबा को तो पसंद नहीं था। तो दीदी का बाबा ने टेस्ट लिया। दादी रतन मोहिनी, जिन्होंने अभी थोड़ा दिन पहले उन्होंने अपनी अव्यक्त अवस्था को प्राप्त किया। दादी रतन मोहिनी को तो आप सबने देखा होगा ना, हाथ खड़ा करिए जिन्होंने रतन मोहिनी दादी को देखा। अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ा है ना, सबने देखा है। तब दादी छोटी थी, 9 वर्ष की आयु थी। किसकी? रतन मोहिनी दादी की। तो बाबा ने एक दिन क्या कहा कि बच्ची, दीदी को बोला सारा प्रोग्राम आज तुमको ये बच्ची देगी, रतन मोहिनी दादी। अब रतन मोहिनी दादी को इतना नॉलेज तो था नहीं, लेकिन बाबा ने उसको कहा। दीदी इतना मजे से सुनाती थी। जब हम लोग कभी कभी ऐसे ऑफ सीजन में दीदी के साथ मधुबन में बैठते थे
दीदी बोली, ऐसे बैठे हुए थे दादी के ऑफिस में, उस दृश्य का आपके साथ शेयर करती हूँ। रतन मोहिनी दादी भी थी, दीदी भी थी, गुलजार दादी थी, ये दादियाँ संदल पर, और हम कुछ बहनें थी, छोटी बहनें बच्चियाँ, हम बैठे थे। दीदी बोली, दादी ये देखा इसको रतन मोहिनी को, जिस समय पर बाबा ने कंट्रोलर बनाया तो ऐसे करके वो रतन मोहिनी दादी जाकर के दीदी को बोलती है, दीदी आज क्या बनाना है? दीदी ने कहा आज ये दाल बनानी है। कहती ये दाल नहीं बनानी है, ये दाल बनानी है, क्योंकि कंट्रोलर कौन थी? रतन मोहिनी दादी थी। माना उसने जो प्रोग्राम दिया, हाँ जी करके दीदी ने उसको स्वीकार किया। गलत था या सही था, कोई करेक्शन दीदी ने नहीं दिया, क्योंकि दीदी को ये मालूम था कि आज कंट्रोलर ये है, तो जो कंट्रोलर कहे वो मुझे करना है। ये संस्कार बाबा ने डाला। अब इसी से संबंधित मैं अपना एक मिसाल सुनाती हूं। मैं जब मधुबन में थी तो मुझे एक दिन दीदी ने बुलाया और मुझे बुलाकर के बोली, सरला तुम्हारे पास कितना फ्रूट है? ये पार्टी आई है, इसको दीदी को फ्रूट खिलाना है। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी मैंने तो सब आपको सुनाया, कल सब दिखाया, इतना फ्रूट हमारे पास स्टॉक में है, तो आप मेरे को ऐसे क्यों पूछती हो? तुम्हारे पास कितना स्टॉक है? दीदी इनको खिलाना चाहती है। आपको बोलना चाहिए कि सरला तुम इतना फ्रूट दो, दीदी को इस पार्टी को देना है। समझना इस बात को अभी यार, वो आपको ट्रांसलेशन में जो बहन बताए। अथॉरिटी होते हुए भी जिसकी डिपार्टमेंट है, जिसकी ड्यूटी है, तो दीदी ने कहा उससे पूछना मेरा फर्ज है। समझा? ये संस्कार परिवर्तन। मैं हूं, मैं करूं नहीं, बड़ों ने वो हमारा ध्यान खिंचवाया, वो संस्कार हमारे में डाले। तो ऐसे बाबा ने ईगो को भी खत्म किया। दूसरा, दीदी को भी बाबा में श्रीमत पर अटूट चलने वाली। एक बार दीदी को डायरिया हुआ तो बाबा ने कहा कि बच्ची को खिचड़ी के साथ में नींबू का अचार खिलाओ। तो वो जो बहन लेकर के गई तो दीदी कहती है मैं अचार नहीं खाऊंगी। बाबा ने अचार खाने की ना की है, नहीं खाया दीदी ने। फिर वो बहन बाबा के पास गई कि बाबा दीदी ने नहीं खाया, कहती है कि बाबा ने ना किया है, अचार नहीं खाना है। बाबा ने कहा अच्छा शाम को बच्ची को बोलना कि बाबा के साथ खाए। बाबा के साथ बैठी दीदी, वो खिचड़ी दिया, बाबा ने चमची से उसमें अचार डाला तो दीदी ने फट से कहा नहीं नहीं बाबा, आपने तो अचार खाने के लिए मना किया है। बाबा ने इतना अच्छा मुस्कुरा करके उसके सामने देखते हुए कहा कि बच्ची बाबा ने ना किया है तो अभी तुमको कौन खिला रहा है? बाबा खिला रहा था ना। तब दीदी कहती है मैंने कान पकड़ा और तब से ये करेक्शन किया, जो बाबा कहे वो मुझे करना है। अच्छा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई हलचल नहीं। एक बार दीदी क्लास में बैठी हुई थी, बाबा ने मुरली चलाते चलाते एकदम जोर से कहा अच्छा बच्ची उठो, गेट के बाहर चली जाओ। क्या हुआ? बाबा मुरली चला रहा है और सीधा बाबा दीदी को कहता है दीदी गेट के बाहर चली जाओ। दीदी ने बाबा के सामने देखा, खड़ी हुई, गेट के बाहर निकल गई और बाहर जाकर के एक पत्थर पर बैठ गई। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, परीक्षा लेता था ना बाबा मजबूती की। बैठी रही, बाबा को बैठी बैठी बड़े आराम से याद कर रही थी। फिर अंदर से बाबा बाहर निकला, देखते देखते तो देखा सामने पत्थर पर दीदी बैठी हुई है। बाबा गया, बड़े प्यार से लेकर के बाबा ने गले लगाया और फिर पूछता है बच्ची क्या संकल्प चला? दीदी ने कहा कोई संकल्प नहीं बाबा। कहा क्यों?
आप जवाबदार हो। बाहर निकालो या घर में रखो, आप जवाबदार हो। और दूसरी दीदी ने कहा, बाबा हो नहीं सकता कि आप मुझे घर से बाहर निकालो, ये मुझे पक्का और अटूट निश्चय। आज हम इन धारणाओं में कच्चे हैं। अगर हमें कह दिया जाए पेपर लेने के लिए भी एकदम इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, सबके बीच में मेरा इंसल्ट कर दिया, सबके बीच में मुझे बाहर भेज दिया, मैं कोई ऐसी आत्मा हूं क्या? मैं भी तो यज्ञ की अधिकारी आत्मा हूं ना, मेरा भी तो ये राइट है ना। ऐसे थोड़े इनको कहना चाहिए था। ये अंतर हमारे में और इन दादियों, इसलिए ये निर्विघ्न रहे। इनका बाबा के साथ अटूट निरंतर योग रहा। आज आपको योग लगाने में मेहनत लगती है, लगती है ना? और मेहनत करने के बाद में भी देखो कितना बारी सुस्ती आएंगी। किसके साथ कनेक्शन जुटा हुआ है? किसके सामने बैठे हुए हैं? ये था श्रीमत की यथार्थ पालना का बल। हम श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं, हम श्रीमत को अपनी रीति से चलाते हैं। है ऐसा? श्रीमत में मनमत मिक्स होती है? होती है? हाथ खड़ा करिए। होती है। अब जहां मिक्स होगा वहां रिजल्ट कैसा होगा? मिक्स होगा ना। हम रिजल्ट कैसा चाहते हैं? दादी दीदी जैसा। हमारी स्थिति कैसी बने? निरंतर अटूट योग रहे। तो इस धारणा को आप अपने जीवन में पक्का करेंगे, मुझ आत्मा को हमेशा परमात्मा श्रीमत पर चलना। श्रीमत में कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। हां, वर्तमान में आपको अकल्याण दिखाई दे सकता है, क्योंकि यह हमारी इस बुद्धि की परख शक्ति का अभाव है। लेकिन बाबा ने जो कहा है, श्रीमत मुझ आत्मा के लिए दी है, उसमें मेरा कल्याण, इस चीज को मैं अभी महसूस करती हूं। हमारे यहां की बात नहीं है, यहां से परिचित नहीं हूं, लेकिन मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माएं फेल हैं, कंफ्यूज होते हैं। ऐसा क्यों बाबा कहता है? ऐसा क्यों हमें मधुबन से कहा गया? ऐसा क्यों फलानी दीदी ने कहा? हम आप सब जानते हैं, जहां इतना बड़ा क्यों आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, वहां क्यों जरूर लगेगी। और वो क्यों आपके आत्म बल को, आत्म निश्चय को और परमात्मा प्राप्तियों को लीकेज करेगी। ये 3 चीजों को याद रखना। जब मेरा आत्म बल कम हो गया, आप कितना भी योग लगाओ, मैं आत्मा हूं, बाबा की संतान हूं, अमृत वेला उठो, मुरली क्लास करो, बल ही नहीं है आप में, तो क्या होगा? क्या होगा? सिर नीचे झुकेगा, शक्ति खत्म हो गई, लीक हो गई। दीदी से ये डबल अंडरलाइन कर दो, मुझ आत्मा को श्रीमत पर चलना है, उसमें जो होना हो नुकसान, उसका जवाबदार बाबा है। मेरा अपना अनुभव, मैं मधुबन से, मुझे ऐसा था कि बस मुझे मधुबन रहना है, मधुबन छोड़ करके कहाँ नहीं जाना है।
और बड़ी दीदी ने ही मुझे दिल्ली भेजा। दिल्ली पांडव भवन अभी शुरू हुआ था, वहां मुझे भेजा। इच्छा नहीं थी, लेकिन ना नहीं कहना है। फिर मैं दिल्ली गई, वहां जाकर के 1.5 वर्ष वहां रही, मन को सेट किया, सेवाओं में सेट हुई, संगठन में सेट हुई, बड़ा आनंद आने लगा दिल्ली में। बस अभी यहाँ ही सेवाएं करनी है। अभी दिल्ली में सेट हुई तो मुझे कहा कि तुमको मधुबन में म्यूजियम में कोई नहीं है, प्रतिभा बहन के साथ म्यूजियम की सेवा में जाना है। तो मुझे दिल्ली से उठा करके मधुबन भेज दिया। मुझे मधुबन आने के बाद में खूब संकल्प चलता था और बार बार मुझे दिल्ली याद आती थी। लेकिन मैंने एक दादियों से ये गुण बात 2 धारणाएं अपने जीवन में पक्की की हैं, एक सत्यता, दूसरी पवित्रता। इन दोनों ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। तो मुझे कहा कि ये अभी उदास रहती है। दीदी ने मुझे पूछा, मैंने कहा दीदी मेरे को ना दिल्ली याद आती है। बचपन था ना, अभी छोटी थी। तो मुझे कहा कि तुम बाबा को मिलना। मुझे अभी भी वो दृश्य याद है। हिस्ट्री हॉल में बाबा आए हुए थे, सबने मिलकर के पूरा किया। दादियाँ बाबा को खिला रही थी, मैं बाबा के सामने खड़ी थी। तो दादी ने ऐसे इशारा किया कि बाबा इसको कुछ आपको बात करनी है। तो मुझे बाबा ने कहा बोलो बच्ची। मैंने कहा बाबा मेरे को दिल्ली याद आती है। बच्चे होते हैं ना तो समझ कम होती है, तो उस समय इतनी समझ तो थी नहीं। फट से बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा मेरे को दिल्ली याद आती है। बाबा ने बड़ा अच्छा मुस्कुराया, दृष्टि दिया। तब बाबा ने मुझे कहा था कि बच्चे दूरांदेश बुद्धि नहीं है, बाप बच्चों का दूरांदेशी है, बच्चों के भविष्य को जानता है और बच्चे न जानने के कारण मूंझते हैं। तब मुझे ऐसे लगा कि ये बाबा मेरे को बहला रहा है। ज्ञान तो नहीं था ना, क्योंकि मुझे दिल्ली पसंद थी और बाबा ने कहा कि इसमें इसका कल्याण समाया हुआ है। तो मुझे लगा मेरा कौन सा कल्याण समाया है, दिल्ली से बुला करके मुझे मधुबन बिठा दिया। आज बाबा के उन महावाक्यों को मैं देखती हूं। मुझे मधुबन से मैसाना भेजा। मैसाना के अंदर आज जिस सेवा के निमित्त बाबा ने बनाया, 2 विशेषताएं रही। मैं मधुबन से नजदीक रही, सबसे नजदीक में नजदीक आज बाबा का घर है तो मैसाना है। मुझे बड़ी दादी हमेशा कहती थी, अरे सरला ताली बजाओ तुम तो पहुंच जाएंगी। तो भगवान के समीप रहने का भाग्य मिला। दूसरी जो वहां सेवाएं बाबा ने ली, जवाबदारी दी और मदद का अनुभव कराया। आज मैं बैठ करके जब सोचती हूं तो शायद मैं दिल्ली में नहीं कर सकती थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो सारे महारथी बैठे थे। दादी ऑलराउंडर थी, दादी गुलजार थी, दादी रुक्मणी थी, कितनी दादियां थी, दीदियां थी, ब्रिजमोहन भाई, जगदीश भाई, सारे महारथी थे। वो प्रोग्रेस जो बाबा ने मुझे यहाँ मैसाना में रह करके कराई, मैं दिल्ली में नहीं कर सकती थी। तो मैं इस बात को नहीं जानती थी, बाबा तो जानता था ना। ऐसे आप सबके जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती होंगी जिसमें आप मात्र वर्तमान को देखते होंगे। अगर मेरे लिए ऐसा नहीं किया होता था तो मेरा ऐसा नहीं होता था। आप बाबा के साथ में ये प्रतिज्ञा करो, जहां तू बैठा है, मैं हर रोज बाबा को कहती हूं, अगर आपको बाबा में संपूर्ण निश्चय है, हाथ खड़ा करिए जिसको बाबा में संपूर्ण निश्चय है, अपने लिए ताली बजाओ। अब इस संपूर्ण निश्चय का जो रिजल्ट आपको बाबा को देना है, वो रिजल्ट ये है कि जहां बाबा है वहां मेरा अकल्याण हो नहीं सकता।
बाबा की हर श्रीमत में मेरा कल्याण। लेकिन एक बात इसमें क्लियर करती हूं, श्रीमत को भी समझना परमात्मा श्रीमत है, आत्माओं की राय है, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है। निमित्त में भी विशेष निमित्त। हमारे सारे छोटे सेंटर्स हैं, उनमें हमारी छोटी बहनें निमित्त हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपको अपने किसी भी चाहे बिजनेस है, परिवार है, या किसी भी कारण से या पुरुषार्थ है, विशेष श्रीमत चाहिए, तो हमेशा निमित्त आत्माओं के साथ बहुत हल्का रहना चाहिए। आपको लगेगा इसको इस बात की नॉलेज थोड़ी है, ये सरला दीदी क्या जानती है कंस्ट्रक्शन क्या होता है। आपकी बाह्य दृष्टि किसको देख रही है? सरला दीदी को देख रही है। अगर आपको बाबा में निश्चय है तो आपको ये सरला दीदी नहीं दिखाई देगी, आपको दिखाई देगा इसके द्वारा बाबा मुझे ये कह रहा है। समझा अंतर? क्यों हमारी समस्याएं बढ़ती हैं? श्रीमत का यथार्थ पालन, मन मत नहीं चलानी है और योग्य जगह से राय लेनी है। और आपको जो बाप ने राय दी, फिर उसको आप आंख मीच करके करो। अगर नुकसान होगा तो बाबा मुरली में क्या कहता है? जवाबदार कौन है? मैं बैठा हूं, बाबा बैठा है। और ऐसे भी यज्ञ में और हमने 1000 मिसाल देखे हैं कि कैसे बाबा जवाबदार होकर के उस कार्य को संभाल लेता है। तो हमारी दादियां, जो उनकी विशेषता थी, उनको आप भी अपने जीवन में लाएंगे तो जैसे ये यज्ञ के आधार स्तंभ, इन स्तंभों के ऊपर हम आप सब खड़े हैं, ऐसे आने वाली जो भविष्य की कमजोर रचना है, उसको आप जैसे सक्षम आधार पिलर्स चाहिए, तब वो लोग ऊपर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे दीदी की और एक विशेषता लास्ट में सुनाती हूं। दीदी स्टूडेंट लाइफ में बहुत मानती थी, एजेड थी, लेकिन कभी भी दीदी पेन डायरी के बिना क्लास में नहीं आती थी, नेवर। और हम लोग को भी सिखाती थी। अरे वो परम शिक्षक, ऑलमाइटी टीचर आकर के पढ़ा रहा है, मैं स्टूडेंट पेन डायरी के बिना। आप में से सब पेन डायरी यूज करते हैं डेली क्लास में? डेली? अच्छा, मालूम दीदी कैसे मुरली लिखती थी? मैं मधुबन में छोटी थी, ठंडी बहुत पड़ती थी और दीदी को ये घुटनों का दर्द था, तो हल्की राजस्थानी रजाई ओढ़ करके बैठती थी और हॉट वाटर बैग यहाँ रहती थी दीदी को, मैं ऐसे बाजू में बैठती थी। मुरली लिखती थी तो हाथ तो ठंडा हो जाता था, तो मस्ती भी करती थी। ऐसे मेरा हाथ लिया और अपनी उस पर हॉट वाटर बैग पर रख करके गर्म करती थी, फिर ऐसे मुझे देख करके कहती, दादी देख रही है। और इतना अच्छी मुरली लिखती थी। लिखने के बाद में हम लोग दीदी के रूम में जाते थे, फिर दीदी प्रश्न पूछती थी। थोड़ी बहनों का ग्रुप था, कहती चलो बैडमिंटन खेलें, चलो मुरली को पचाएं, हजम करें। और दीदी जो प्रश्न पूछती थी, तब हम सोचते थे आज मुरली में बाबा ने कुछ ऐसा कहा क्या? इतना एकाग्र होकर के और एक्यूरेट वर्ड्स को पकड़ती थी और फिर उसका उन पर चिंतन चलता था। फिर हम लोग को बोलती थी, देखा ये मुट्ठियां पढ़ी लिखी भूल गई, तुमसे तो अनपढ़ हम अच्छे।
पढ़े लिखे तो हम लोग थे ना, लेकिन वो जो स्टूडेंट लाइफ थी वो दीदी से हमने सीखा और ये सिखाया, कभी भी बाबा के मुरली क्लास में पेन डायरी लिए बिना नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अभी हम क्या है, हमने ये भी हमारे क्लास में भी दीदी की धारणा सबको सिखाई। एक भाई वो क्या करे, हर रोज मुरली लिखे और मुरली लिखने के बाद में अपनी डायरी ना यहाँ ही किसी कबाट के ऊपर रख करके जाए। एक दिन मैं देखा तो उसका नाम पढ़ा, मैं उसको बुलाया, मैंने कहा तुम्हारी डायरी यहाँ भूल से रह गई। बोला नहीं, भूल से नहीं रह गई, मैं रोज यहीं रख करके जाता हूँ। मैंने कहा किसके लिए? तुमने मुरली लिखी, बोला दूसरे दिन लाना ना भूल जाऊं ना, इसलिए यहीं छोड़ जाता हूं। अब वो लिखा हुआ पढ़ा किसने? डायरी तो यहां है ना, तो पढ़ा किसने? नहीं। लिखो, लिखने के बाद घर जाकर के मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में व दोपहर को, रात को, कभी भी मुरली को रिवाइज जरूर करो। तीसरी बात, इसी मुरली में धारणा, जो जिस दिन आपने सुना है उसमें से 1-2 रतन भी दान जरूर करो। केवल मुरली सुनना नहीं, केवल लिखना नहीं, मनन भी करना जो अपना बने, और चौथा, उसमें से निकला हुआ माखन दूसरों को खिलाओ। ये थी हमारी आदरणीय श्रद्धेय दीदी की। जितनी विशेषताएं धारणाएं बताओ उतना कम है, क्योंकि ये बाबा की दीवानी गोपी थी। लौकिक में होते हुए भी ये अलौकिक जीवन को प्राप्त किया। एक और लौकिक का मिसाल दे करके इसको मैं पूरा करती हूँ। ये फाउंडेशन इन्हों का जो बाबा में पक्का था, दीदी का लौकिक भाई मिठू भाई हांगकांग में बिजनेस करता था, वो आया। अभी दीदी यज्ञ में समर्पित हुई थी। उसने कहा, वो बात नहीं करना चाहता था। दीदी ने बाबा को कहा कि बाबा वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मिलना है तो मेरे को टाइम है, तो मेरे साथ फलानी पिक्चर में चलो, वहाँ बैठे बैठे हम बात करेंगे। पिक्चर में तो हम लोग जाते ही नहीं हैं। तो बाबा को पूछा, बाबा ने कहा हाँ बच्ची जाओ, वहाँ बैठ कर के उसको ज्ञान सुनाना। क्योंकि बाबा को मालूम था दीदी को इसका अट्रैक्शन है ही नहीं पिक्चर का, बाबा की श्रीमत है। वहाँ बैठ कर के दीदी ने उसको भू भू किया, ज्ञान सुनाया, थोड़ा उसकी बुद्धि में गया। उसके बाद उसका दीदी के साथ का व्यवहार परिवर्तन हुआ, प्यार हुआ। ऐसे ही दीदी का पति था, उसको बाबा हिटलर कहता था। लौकिक पति जो था उसको हिटलर कहता था। उस बंधन से भी दीदी ने बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने आप को मुक्त किया और यज्ञ की मम्मा के बाद दूसरी प्रशासिका, मुख्य प्रशासिका वो आदरणीय दीदी थी। दीदी के साथ में हमारी दादी थी। ऐसी थी हमारी दीदी मनमोहिनी। मैं बीना बहन को कहेंगी वो भी दीदी मनमोहिनी के कुछ अंश आप सबके सामने प्रस्तुत करें। बीना बहन, आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए जरूरी है? इससे हमारी धारणाओं पर में परिपक्वता आएगी। जरूर दीदी। थैंक यू। ओम शांति। आदरणीय सरला दीदी ने हमें यज्ञ का बहुत अच्छा साक्षात्कार कराया है और कराते रहेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मैं बचपन से बार बार मधुबन जाती थी, सेंटर पे जाती थी और दीदी मनमोहिनी से, प्रकाशमणि दादी से बहुत नज़दीक थी। बार बार वो मुझे बुलाते थे और जब भी मधुबन जाती थी तो दीदी मनमोहिनी खास बुला करके बहुत सारी गिफ्ट्स देते थे, खुद ही देते थे। कभी मुझे स्टोर में भी लेके जाएंगे, तुमको जो चाहिए ले लो से। तो बचपन से ही दीदी ने जैसे बहुत प्यार से
इतना ज्ञान की समझ नहीं थी, लेकिन प्यार से अपना बना लिया। और जब मैं कॉलेज पढ़ रही थी तो उस समय दीदी मनमोहिनी और उनकी लौकिक मदर, क्वीन मदर, गामदेवी सेंटर पे 4 महीना लगभग रहे। उनका हेल्थ चेकअप हो रहा था, तो मैं तो लौकिक पढ़ाई और जॉब में बिजी रहती थी, कभी कभी सेंटर पे जाती थी। लेकिन दीदी जब से गामदेवी सेंटर पे आए तो खास मुझे उन्होंने बुलाया और मेरे से पहले दिन ही बोला कि तुम रोज 1 घंटा सेंटर पे आना। तो दीदी का इतना प्यार था कि ना नहीं बोल सकते हैं। तो कैसे भी टाइम निकाल के दीदी ने रोज सेंटर पे आना है। ओके, मैं जाती थी। तब मुझे हिंदी मुरली इतना समझ में नहीं आती थी, इंग्लिश मुरली प्रिफर करती थी और भक्ति का भी कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो दीदी मनमोहिनी खुद मुझे बैठ करके रोज मुरली में से कौन सी पॉइंट धारणा की है, ज्ञान की है, मैं शाम को जाती थी तो दीदी खुद मेरे को बैठ करके 10 मिनट ये मुरली ऐसा है, इसमें ये पॉइंट है, ये सब्जेक्ट है, मुझे जैसे प्राइवेट ट्यूशन देती थी। और योग कैसे करना है वो भी दीदी ने सिखाया, एक एक संबंध जोड़ना। ऐसे बस 1 घंटे से रोज 2 घंटा सेंटर पर जाना शुरू किया और सेंटर की सब प्रकार की सेवाएं कैसे करनी है, किचन हो, सफाई हो, सब दीदी ने मुझे सिखाया है। और भी बहनें थी सेंटर पर, लेकिन दीदी निमित्त बनी। और तब से लेकर दीदी थोड़ा स्ट्रिक्ट भी थी, तो हमेशा मुझे क्लास में आगे बिठाती थी और तुमने क्या मुरली का पॉइंट्स लिखा वो रोज मेरी डायरी लेकर के पढ़ती थी दीदी। तुमने क्या समझा और क्या लिखा। और फिर धारणा के लिए कुछ क्वेश्चंस देती थी कि आज सारे दिन में ये प्रैक्टिस करना, ये 3 दिन ये प्रैक्टिस करना। कभी होता था, कभी नहीं होता था, लेकिन दीदी अटेंशन रख के 3-4 दिन के बाद पूछती थी, मैंने तुमको ये कहा, इस बात का तुमको क्या कर रही हो। तो प्रैक्टिकली जो हम कर रहे हैं वो सच्चाई से सुनाना है। तो दीदी फिर सिखाती भी थी, क्षमा भी करती थी, फिर आगे के लिए भी अच्छा ठीक है, आगे के लिए ऐसा करना, ऐसे मतलब बहुत ही ऐसे। गामदेवी में 5-6 कुमारियां थी उस समय, सभी से और सभी माताओं से, भाइयों से, सभी से बहुत प्यार था। और आगे भी दीदी ने बहुत कुछ जैसे सिखाया। और दीदी की एक विशेषता और कहूँगी, लौकिक परिवार, जैसे सरला दीदी ने बोला, उनके भाई मिठू भाई का बाबा के साथ संबंध जुड़ाया। तो गामदेवी में जो सेंटर था बहुत छोटा था, तो एक्स्ट्रा जगह लेनी थी। तो उन्होंने, दीदी ने बाबा से पूछ करके फिर उनके लौकिक परिवार की तरफ से सेंटर के लिए स्थान लेकर के दिया। तो लौकिक का भी कैसे दीदी ने सफल करवाया, यज्ञ में सफल होना चाहिए। तो बेगरी पाठ के समय भी दीदी के भाई भाभी ने बहुत बाबा को मदद की है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा कि वो उन्होंने बाबा को कैसे एक सेंटर के लिए स्थान लेकर के दिया। और दीदी के साथ जब मैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जाती थी तो दीदी को कभी पेन, उनके कुछ भी हुआ तो कुछ भी चेहरे पर नहीं आता था। जैसे 10 मिनट कुछ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है या कोई भी ट्रीटमेंट है तो थकावट होती है, हमारे चेहरे पर वो दिखाई देता है। तो दीदी के फेस पे कभी भी कुछ नहीं दिखाई देता था, कभी कोई कंप्लेन नहीं की।
ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ आने से कभी कोई कंप्लेन नहीं की। तो ऐसे तो हम बड़ों की विशेषताएं सुनते जाएंगे और मुरली से बहुत बहुत प्यार, ऐसे बहुत बातें मैंने भी, मेरा भाग्य है कि ऐसी श्रद्धेय दीदी के साथ मुझे हर प्रकार की पालना बाबा के द्वारा मिली। और दीदी और क्वीन मदर जाने के बाद भी जो दीदी की छोटी बहन शीलेंद्रा दादी गामदेवी पे रहती थी, तो वो भी बहुत प्यार से, लेकिन धारणा में, मुरली में, योग में बहुत स्ट्रिक्ट। योग क्यों 5 मिनट देरी से आई ऐसा भी पूछेगी। योग अगर 6:30 सुबह को शुरू होता है तो उसके पहले हमें सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए। तो कभी 5-10 मिनट देरी भी हो जाती है तो पूछेगी क्या हुआ, आज देरी से आई। अच्छा कोई बात नहीं, कल से थोड़ा अटेंशन रखना, हर बात पे टाइम पर आना है। तो ऐसे बड़ों से बहुत कुछ पालना और शिक्षाएं। और आदर्श मूरत दीदी को 28 जुलाई उनका एनिवर्सरी है, तो अभी जुलाई मंथ में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो जरूर हम दीदी के बारे में और उनकी धारणाओं को भी हम अपने जीवन में लाएंगे। ओम शांति जी। हाँ आप सुनाइए। आप हमारा जो हेड क्वार्टर माउंट आबू है, तो उसके लिए भी जब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुआ तो बाबा ने बड़ी दीदी को ही भेजा था, क्योंकि ये मिट्ठू भाई बॉम्बे में थे, इनको भी था कि भाई वहाँ ऐसी परिस्थिति है तो आप सब इधर आ जाओ। तो दीदी देखने के लिए निकली थी। तो पूना में कोई इनके गुरु थे, उनको पूछा कौन सा स्थान है, तो कहा आप लोग के लिए माउंट आबू अच्छा रहेगा। फिर देखते देखते ढूंढते हुए वहाँ गए। तब तो आबू की परिस्थिति भी पहाड़ कैसा था, ना इतनी सारी सुविधाएं थी। फिर वहाँ इन्होंने देखा एकांत है, पहाड़ी इलाका है। फिर बाबा को वहाँ का समाचार दिया, उसके बाद में उस स्थान को फाइनल किया। तो यहाँ लाने के निमित्त भी आबू जो है राजस्थान, वो स्थान भी दीदी की पसंदी का है, जिसमें आज हम सब जा रहे हैं, हमारा हेडक्वार्टर। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। सो दीदी ने जो भी बातें हमसे अभी शेयर किया, वो एक एक बात हमारी मन की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, बाबा के नज़दीक ले जाने के लिए बहुत मदद करेगा।